Hello students, this is your first lecture for the second chapter Structure of Atom. Some of the topics of this chapter has been reduced by CBSE due to coronavirus pandemic. Now, according to revised syllabus, I am going to discuss some of the topics of this chapter. Now, first of all, before discussing the different topics of this chapter, first of all you should know the meaning of atoms and what are the charges and masses on different types of fundamental particles of atoms. As you know that matter made up of small particles called atoms, and an atom consists of three fundamental particles called electron, proton and neutron. Out of these three particles, proton and neutron present in the center of the atom, that part is called nucleus, and electrons revolve around the nucleus. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे रिवॉल्व करते हैं. नाउ दीज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैरी व्हाट चार्ज एंड मासेस. एन इलेक्ट्रॉन कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज -1 चार्ज and its mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. One proton carry unit positive charge of same magnitude as an electron carry but just opposite. इलेक्ट्रॉन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. एंड वन प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स हेवियर देन वन इलेक्ट्रॉन. And the mass of one proton is 1.673 into 10 to the power minus 27 kilograms. A neutron carry no charge. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, मीन्स न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. वन न्यूट्रॉन इज 1841 times heavier than one electron. It means the mass of proton and neutron is nearly same. And in kilograms, the mass of one neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kilograms. Now, what is the position of these particles in an atom? The positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region, and this concentrated region was called nucleus. In थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स में एज अभी आपको मासेस का कंपैरिजन बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास से नेग्लिजिबल है, मीन्स द मास ऑफ एन एटम इज़ ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के सेंटर पे स्मॉल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, और उस स्मॉल रीजन को न्यूक्लियस कहा गया था और न्यूक्लियस कहा जाता भी है. द न्यूक्लियस is surrounded by electrons moving in a very high speed in circular paths called orbit. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होते हैं, जिसको ऑर्बिट्स कहा जाता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ड्यू टू अपोजिट चार्ज they are held by electrostatic force of attraction. Now the first topic of this lecture is nature of electromagnetic radiation or electromagnetic wave theory. What is meaning of waves? This theory was put forward by James Clerk Maxwell in 1864. The main points of this theory are: first point, the energy is emitted from any source like the heated rod or the filament of a bulb through which electric current is passed continuously in the form of radiation and is called the radiant energy. मीन्स किसी भी सोर्स से एनर्जी जो इमिट होती है कंटिन्यूसली रेडिएशन के फॉर्म पे निकलती है और उसे रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है. मीन्स जब भी किसी चीज़ में किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है तो उससे एनर्जी उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मूव करती है और उसे वेव्स कहा जाता है. और उस वेव का फंक्शन क्या है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से एनर्जी को लेकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक कन्वे करना. जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि साइलेंट वाटर पे जब आप एक स्टोन फेंकते हैं तो आपको वेव्स बनती हुई दिखाई देती है. तो यदि आप धीरे से
स्टोन के पीस को ड्रॉप करेंगे तो आपको वेव्स थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस तक दिखेगी, लेकिन यदि आप उसको ज़्यादा प्रेशर से डालेंगे तो वेव्स दूर तक जाती हुई दिखाई देती है। मीन्स वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा वेव्स उतनी ज़्यादा बनती है, और वाइब्रेशन जितना कम होगा वेव्स उतनी कम बनेगी। तो जो वेव्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन के कारण बनती है, और वहाँ से एनर्जी निकल कर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाती है। द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन। मीन्स ये जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होती हैं, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, और एज वेल एज वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन के भी परपेंडिकुलर। द रेडिएशन पॉजेज वेव कैरेक्टर एंड ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रेडिएशंस की वेव कैरेक्टर्स होती हैं और इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल मीन्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीन्स एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करती हैं। These waves do not require any material medium for propagation. For example, rays from the sun reach us through space, which is non-material medium. Means ये जो waves होती हैं उसको मूव होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। ना इस स्लाइड में आपको वेव्स दिख रही हैं। ये वेव्स जो होती हैं वो वाइब्रेटिंग मोशन के राइट एंगल पे मूव करती हैं, तो वेव्स जो बनती हैं उस पर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। रेड कलर से इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ब्लू से शो किया है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव के दोनों जो हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन ऑफ वेव का भी परपेंडिकुलर है। इस पे जो हाइट्स ऊपर जो वेव्स बन रही है उसके 2 सक्सेसिव जो उसको पीक्स कहा जाता है, और नीचे जो है उसको ट्रफ कहा जाता है। ऊपर के वेव्स का जो ऊपर का डायरेक्शन है उसको पीक और नीचे को ट्रफ। 2 सक्सेसिव पीक या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। Now what are characteristic of a wave? 5 characteristic हैं. I am going to discuss one by one. Now the first characteristic of wave is wavelength. It is defined as the distance between any 2 consecutive crest. पीक को क्रेस्ट भी कहा जाता है, और ट्रफ्स जो नीचे पे बन रहा है उसको ट्रफ कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स लिखा हुआ है, एक्चुअली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसके एसआई यूनिट है मीटर। एंड बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है इसलिए इसको एंगस्ट्रॉम में डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 meter. So what is wavelength? Clear? Wavelength is the distance between any 2 successive crest or peak or 2 successive trough. It is represented by lambda and its SI unit is meter. Now the second characteristic of a wave is frequency. Frequency of a wave is defined as the number of waves passing through a point in 1 second. Means 1 second में particular point जितने पॉइंट तक वेव्स पास होगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में थ्रू अ पॉइंट जब पास होगी तो उसको फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। इसको हर्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। तो व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी? क्लियर? फ्रिक्वेंसी इज ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट में 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास होगी उसको फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। नाउ वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c and it is expressed in centimeter per second or meter per second. So this is third property of a wave. Now fourth property of wave is amplitude. Amplitude of a wave is the height of the crest
और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। मीन्स वेव्स में अभी आप लोगों ने डायग्राम पे देखा था, पीक जैसे बनते हैं, ऊपर वाले को पीक और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है उसी यूनिट में एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ वेव नंबर, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में जितनी वेव्स प्रेजेंट होगी उसको वेव नंबर कहा जाता है। एविडेंटली इट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। इसको ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। यदि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वेव नंबर कम होगी एंड वाइस वर्सा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बार वी रीड एज न्यू बार। इसको न्यू बार रीड किया जाता है। तो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। आपको ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव समझ में आ गई होगी: वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव नंबर। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? When electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequencies, the complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum. जो वाइट लाइट होती है वो आपको उसमें कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। एक्चुअली जो सन की रेज होती हैं उसको मेनली 3 लाइट में डिवाइड करते हैं: अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट। जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में आप देखेंगे तो इसको 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम कहेंगे एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, और नैनोमीटर्स के टर्म में 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसके यदि वेवलेंथ होती है लाइट की वो 400 नैनोमीटर से लेस होती है तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, और 700 नैनोमीटर से जो ज़्यादा होती है वो इंफ्रारेड लाइट होती है। Now the next topic of this lecture is black body radiation. The ideal body which emits and absorbs all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. The exact frequency distribution of the emitted radiation from a black body depends on its temperature. At a given temperature, intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength, and then starts decreasing with further decrease of wavelength. इस फिगर पे आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो देखकर समझ में जाएगा कि at a given temperature, intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength. Means wavelength जब कम होती है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। एक साइड इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में आपको ग्राफ दिख रहा है। मीन्स वेवलेंथ इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मोर एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। Now what is Planck's quantum theory? To explain the phenomenon of black body radiation and photoelectric effect, Max Planck in 1900 put forward a theory known as Planck's quantum theory. This theory was further extended by Einstein in 1905. The main points of this theory was as follows. Planck's quantum theory से आगे इसके आगे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से आपको क्लियर होगा। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है? फर्स्ट पॉइंट है द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ क्वांटम। जो रेडिएंट अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सोर्स से लाइट जो इमिट होती है वो रेडिएशन के फॉर्म पे इमिट होती है। जो रेडिएंट एनर्जी होती है इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ क्वांटम, एंड इसी को लाइट के केस पे फोटोन कहा जाता है। देन द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। हर क्वांटम की हर बंडल ऑफ जो एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की में। ई इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू और ई इक्वल टू एच न्यू।
वेयर h इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर h प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसकी जो वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Hertz in 1887 discovered that when a beam of light of certain frequency strikes the surface of some metals, electrons are emitted or ejected from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. Means the ejection of electron from the surface of metal when light of some minimum frequency fall on the metal surface is called photoelectric effect. किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना जब उस पर किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल होती है को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, और इस इफेक्ट को फर्स्ट 1887 में हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओनली फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. The value of threshold frequency is different for different metals. means जो लाइट मेटल सरफेस पे फॉल होती है उसकी कुछ मिनिमम फ्रिक्वेंसी होना मस्ट है। यदि उससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, एंड डिफरेंट मेटल्स के लिए उस फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, और डिफरेंट मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। Now second point, the kinetic energy of electron which are emitted is directly proportional to frequency of the striking photon and is quite independent of their intensity. Means जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, और यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी, एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। दैन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो जो है वो रेडिएशंस की या एनर्जी की जो उसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। अभी आपको बताया था कि लाइट के केस में बंडल ऑफ एनर्जी को फोटॉन्स कहा जाता है, एंड नॉट अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स एंड नॉट अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है? वाई द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस? आइंस्टीन इन 1905 was able to give an explanation of the different points of the photoelectric effect using Planck's quantum theory. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी आपको बताया था इसके पहले भी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना तभी होगा जबकि इंसिडेंट लाइट की कोई सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। दैन सेकेंड पॉइंट, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द एक्सेस एनर्जी एच न्यू, अभी ई इक्वल टू एच न्यू आपने देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। दैन यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो उसको न्यू नॉट से शो करेंगे, माइनस एच न्यू नॉट मीन्स जो एक्सेस फ्रीक्वेंसी है वो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा एज काइनेटिक एनर्जी, इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। मीन्स एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो is imparted to electron as kinetic energy. Means kinetic energy of the ejected electron, kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इसी फॉर्मूला को यदि हम रीअरेंज करें तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, देन एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट को डब्लू ज़ीरो से जो शो किया है, डब्लू के सब्स्टिट्यूट पे जीरो, उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, plus half mv square. And energy of the emitted electron
means energy of emitted electron equal to work function plus kinetic energy. On increasing the intensity of light, more electrons are ejected, but the energies of the electron are not returned. मीन्स यदि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना बढ़ जाएगा, लेकिन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिटर्न. दैट्स ऑल. Rest of the portion means next few topics I will discuss in next lecture.